all the amazing learners, welcome to your own online classes of history. So dear student, as you know that we are discussing the important chapters of your history, and in that we are on the chapter number 3, that is nationalism in India. So we are following your NCERT book, which is under the CBSE guideline. Today's lecture is very important because this lecture promises you 2 marks in your board examination. Yes, dear student, you are hearing it right. If you are just going through this lecture, then your 2 mark is for sure guaranteed in your board examination. So what today's topic is about? Today's topic is about map portion of your chapter number 3, that is nationalism in India. So with the name of the chapter only, you can guess that in this we are going to discuss only about the map portion of India, and this much is only included in your syllabus this year 2020 and 21 for your class 10 board examination. So we will be discussing here some of the points. These are very less points, you need not worry at all, and I again and again remind you that if you just see this lecture, your 2 mark is promised in your board examination of history, social science, because this is the must portion which always repeats in your examination. Map portion is always there for you in both geography as well as history, and if you just go through this lecture, your 2 marks of board examination is being promised. Yes student, before starting up of today's session of map, there is some set of instructions for you all. First of all, you have to get one outline map of India. You can get it easily at any of the stationery shop near your house. After that, you need a pen or pencil to mark over the map. Along with me only, you have to mark the point in your map also, so that you can remember these points forever, or whenever you need for the preparation of your board examination, you can stick it in your notebook and read it anytime. So now let's continue our topic. So here you can see, as per your syllabus, there are some of the things written. So the history, what I have told you have to get one outline political map of India. In that you have to label and locate places related to the nationalism in India from the year 1918 to 1930. Only this much is our syllabus. So the map portion we have to cover up in 2 points. First, it is Indian National Congress session, and then after that we will see about the important centers of Indian national movement. Don't be scared, this is not at all difficult. It is very easy. You can remember this within minutes. So first one is Calcutta, as you can see, right? तो कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था कब? सितंबर 1920 में. ये आपको याद रखना है. योर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. नेम अ प्लेस वेयर द national congress session was held in September 1920. This way your questions are made in your examination, board examination. Okay, so now let's come to the map. Here you can see the map. ठीक है, तो कलकत्ता में आप देख सकते हैं, कलकत्ता आपका किस स्टेट में है? बंगाल में. बंगाल कौन सा स्टेट है? ये वाला. ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट कलकत्ता एंड देन यू कैन क्लियरली राइट डाउन सितंबर 1920 so that you can remember it. I would also suggest you to write down the question it is given in the slide. You can write down the question like this only. First write, copy this in your notebook. Just similarly, okay, from here, chapter 3, national in India, locating in India, 20, Kolkata, Nagpur and Madras. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि मैं आपको वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा मैप पोर्शन से हिस्ट्री के लिए. और अगर फिर भी आपको इंटरेस्ट है कि आप कुछ और पॉइंट जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. मैं आपको और भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा दूँगी, बट क्योंकि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पॉइंट्स के अलावा और कोई पॉइंट नहीं आएगा. सो हियर यू कैन सी योर कलकत्ता. ओके, एंड यू हैव टू फोकस इट कि कई बार क्या होता है, लोग कलकत्ता को जो है यहाँ मार्क कर देते हैं इस एरिया में. आई कैन जूम द मैप मोर फॉर यू. ओके, तो कलकत्ता ज़्यादातर स्टूडेंट इस पोर्शन में मार्क कर देते हैं. तो ये एंटायरली रॉन्ग है, क्योंकि ये एक दूसरा नेशन है. यहाँ पे ये इंडिया नहीं है, राइट.
तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और बिल्कुल यहीं पे आपको कलकत्ता मार्क करना है, डैट इज़ इन बंगाल. ओके, आई होप यू आर क्लियर with this. Mark it right now, Kolkata, in the map you are having with you. Now let's see another word. It is Nagpur. The session of Nagpur, Indian National Congress session of Nagpur in the year of December 1920. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और लोकेट इन द मैप द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन विच वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1920. लोकेट मतलब कि मार्क करना और लेबल करना कि उस मतलब कि उस चीज़ का नाम बताना होता है. ठीक है, तो अब हम नागपुर देख लेते हैं कि हमारा इंडियन मैप में कहाँ है. तो इंडियन मैप में आपका नागपुर जो है वो इस एरिया में है. ठीक, you can clearly see it here. You will mark your Nagpur. Clearly see the position and on the exact position only try to mark your places. It will fetch you good marks. December 1920 you can write down like this in your map. First you will write Nagpur, then December 1920. I hope you are clear with the Nagpur also, just like Kolkata. If you want you can even pause the video and look it clearly where your Nagpur lies. Now when we are done with this, now let us see our another point. Now here it is last point, Madras in the year 1927. So it can ask name the place where Indian National Congress session was held in year 1977. So what you will write and locate in the map, you will write and locate Madras. Okay, विच वॉज नाउ नोन एज चेन्नई. चेन्नई का पुराना नाम मद्रास होता था. तो मैं आपको अगेन जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली ये डिपिक्ट हो जाए कि मद्रास कहाँ है. तो यहाँ पे है आपका मद्रास. यू कैन क्लियरली सी इट. इट इज़ एट द कॉर्नर. Similarly mark it, make a point, make a circle and then show an arrow that it is Madras in the year 1927. The Indian National Congress session was held here. Okay, so you are clear. Once again you can see all the three places in your map. Is Calcutta, then Nagpur and at last Madras. So this was all about your Indian National Congress session. One more point is there, Lahore. It was out of India. Okay, as you know, Lahore is in Pakistan, so it is marked at outside region of India, but this is not that much important. Only the 3 points you have to study, the Calcutta, Nagpur and Madras, because only this much is included in your syllabus. Like you can see here in the question, this map marking is directly taken from the syllabus of your this session 2020 and 21 updated and revised syllabus. So you can see only these 3 points are important. You have to not prepare anything else in the marking of Indian National Congress. Okay, now let's come to the second portion. If you are clear with this portion, now this we will see the next portion, that is इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी उस टाइम की, उसको आपको मार्क करना है. तो चंपारण हमें पता ही है बिहार में था, जहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था सबसे पहले फॉर इंडिको प्लांटर्स के लिए. फिर खेड़ा गुजरात में, जहाँ पे फिर से सत्याग्रह हुआ था पीसेंट्स के लिए, रेवेन्यू उनको नहीं मिल रही थी. फिर थर्ड हमारा सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, वो कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह था गांधी जी के साथ, राइट. फिर हमें जो चौथी प्लेस है वो मार्क करना देखना है अमृतसर अबाउट पंजाब, जहाँ पे जलियांवाला एक्सीडेंट हुआ था. देन चौरी चौराहा कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देन एफ डांडी गुजरात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. टोटल आप मतलब कितने हो गए, 6 यहाँ पे और पिछले मैप में 3. तो टोटल आपको 9 पॉइंट ही बस पढ़ने हैं. बस आप ये वीडियो देख लीजिए. अगर आपको एक बार में प्रॉब्लम हो रही है 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए. उसके बाद आई एम श्योर आपके 2 मार्क्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्के हो जाएंगे. Now let's quickly come to the map. One by one we will see. First it is चंपारण, movement of indigo planters. ओके, तो चंपारण कहाँ पे है हमारा? चंपारण हमारा बिहार में है, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश है और उसके जस्ट बगल में हमें पता ही है हमारा बिहार हमारा नेबरिंग स्टेट है. तो चंपारण जो है वो यहाँ इस एरिया में है बिहार में. ओके, यू कैन क्लियरली सी इट इज़ चंपारण इन बिहार. Okay, let me move down the map for you. Yes, here it is your Champaran.
I hope you are clear with it. The position of Champaran. Mark a circle here. Similarly, put an arrow and write Champaran in your map. If you want, you can do this second thing also in the same outline map which I told you to do for the Indian National Congress session. But if you want or if you want more clarity or clearance of the points, so you can get another map also to mark out the important places of Indian National Congress. Okay, so now you might be clear with the position of Champaran. Now let's come to our second point. It is खेड़ा. खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है, राइट? तो गुजरात हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है गुजरात। एकदम जो वेस्ट में पोर्शन है इंडिया का, जो लास्ट वेस्ट स्टेट है, वही है हमारा गुजरात, एज यू कैन क्लियरली सी हियर। तो ये हमारा खेड़ा है। ओके, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? खेड़ा है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एरो करके आप मार्क कर देंगे एज खेड़ा। क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर थर्ड पॉइंट, अहमदाबाद। तो गुजरात में ही ये सारे प्लेसेस हैं। गुजरात में इतनी सारी जगहों पे क्यों, इतनी सारी चीज़ें क्यों हुई थी? क्योंकि हमें पता है कि इन सारी चीज़ों से कौन रिलेटेड है? महात्मा गांधी रिलेटेड है। और महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस क्या है? गुजरात। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में गुजरात का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। ओके, तो हमने देखा अहमदाबाद। खेड़ा से जस्ट ऊपर, बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे आपका है अहमदाबाद। मेक अ पॉइंट, पुट एन एरो एंड राइट देयर अहमदाबाद। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज थर्ड। देन एट डी इज योर पंजाब। ठीक है, पंजाब में क्या? अमृतसर, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे हमारा क्या है? पंजाब। और पंजाब के ऊपर ही हमारा कौन सा प्लेस है? अमृतसर। ओके, मेक अ पॉइंट एंड मार्क इट विद एन एरो, अमृतसर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस? हियर द जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस, राइट? तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बता दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, बट मैम ने तो ये बताया आपके क्वेश्चंस इसमें कैसे आएंगे, अबाउट द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो डोंट वरी, योर मैम इज़ हियर, सो यू नीड नॉट वरी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे कि इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन, नेम अ प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ कॉटन इंडिगो प्लांटर्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली नहीं आएंगे, घुमा के आएंगे, बट आपका आंसर जो है वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदल रहा है। ठीक है, फिर आ सकता है नेम द प्लेस वेयर जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस, राइट? तो बस आपको पता है जलियांवाला इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। तो लोकेट एंड लेबल करने को ही आएगा, राइट? लोकेट एंड लेबल द प्लेस where the Jallianwala incident took place. So just you will come to your map and here you will get over the portion of Punjab and directly you will make a point and mark it अमृतसर। बस यही लिखना है। और जैसे आपका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए सेकंड का बी है, राइट? आपका सेकंड का बी क्वेश्चन है कि नेम द प्लेस वेयर जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस। तो बस यहाँ पे अमृतसर लिखा और यहाँ पे मैप में ही आपने 2B करके ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख दिया उसके बाद। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आपको लिखने की ज़रूरत है। आपको कॉपी में भी नहीं लिखना है, आपके मैप को ही चेक किया जाता है। कॉपी में आपके आंसर, इस वाले आंसर को नहीं चेक किया जाता है, तो आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर करेक्टली डालिए और वहाँ पे प्लेस का नाम लिख के उसे लोकेट कर दीजिए। दिस मच ओनली यू हैव टू डू इन योर मैप पोर्शन। और द नेक्स्ट फिफ्थ प्लेस यू हैव टू डिस्कस इज़ अबाउट द चौरी चौरा। चौरी चौरा की क्या खासियत थी? यहाँ पे कांड हुआ था चौरी चौरा, जिसमें पुलिस स्टेशन को इंडियन पीपल ने जला दिया था और यहीं से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लोकेट एंड लेबल द प्लेस ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको पता है क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है चौरी चौरा। कहाँ नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ था? चौरी चौरा में कॉल्ड ऑफ हुआ था। ओके, नाउ यू विल कम टू मैप। चौरी चौरा आपको पता है गोरखपुर में है, राइट? तो हम अपने यूपी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम कॉर्नर में ही एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और एरो बना के चौरी चौरा लिख देंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो, मान लीजिए 2C था तो आप ऐसे यहाँ पे 2C लिख लीजिए। यहाँ पे 2E था तो यहाँ पे 2E लिख के नाम लिख के चौरी चौरा फिर एरो से उसे डिपिक्ट कर दीजिए। ये हुआ आपका क्वेश्चन और उसका आंसर।
I hope you are clear. You can once again see the place. Here it is. ओके जस्ट ये वाला पोर्शन पे मत मारे करिएगा, मैंने अक्सर देखा है, मैंने पेपर्स जैसे चेक किए थे लास्ट ईयर के, इस ईयर्स के भी, कि मैंने देखा जो बच्चों ने कॉमन मिस्टेक की थी उन्होंने यही किया था कि उन्होंने नेपाल के पोर्शन में चौरी चौरा मार्क कर दिया था। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चौरी चौरा आपका यूपी में है, इंडिया में, आप उसको इंडिया के बाहर थोड़ी ना कर दोगे। तो अगर आप उसको इंडिया में प्लेस करो तभी आपको मार्क मिलेगा। अगर नेपाल या चाइना में पहुंचा दे रहे हो तो आपको चौरी चौरा के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी पर्टिकुलर अबाउट योर पॉइंट्स। थोड़ा बहुत मिस्टेक है, मान लीजिए आपने यहाँ के बजाय यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, या फिर यहाँ मार्क कर दिया, तो ठीक है, उतना चलता है। बट ये थोड़ी ना कि चौरी चौरा को नेपाल में पहुँचा दो या चाइना में पहुँचा दो, तब तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। या बिहार में पहुँचा दो, या अमृतसर में चौरी चौरा को पहुँचा दो, जम्मू कश्मीर में पहुँचा दो, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस आपका चल सकता है आपको मार्किंग में, बट इतना बड़ा आपको ग्रेव मिस्टेक नहीं करना है। Now let's come to our last question, that is second का F question, that is डांडी गुजरात। तो क्वेश्चन पूछ सकता है locate and label the point on the outline political map of India where civil disobedience movement was started। तो आपको पता है कहाँ स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च से, डांडी गुजरात में, राइट। तो अब हम फिर से गुजरात में आ जाएंगे, महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप खेड़ा के थोड़ा सा नीचे ही वन अराउंड जो है खेड़ा की हाफ इंच के डिफरेंस पे आपका डांडी है। तो यहाँ पे पॉइंट करके आप उससे लोकेट कर देंगे डांडी। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर। गुजरात के पास ही गुजरात में ही डांडी है। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल दिस 6 पॉइंट वॉट एवर वी आर what we have discussed. Once again we can revise it. First we have discussed about the Champaran, then we have discussed about the Kheda, then Ahmedabad, then Amritsar, then Chauri Chaura and then डांडी। ओके, ये क्लियर है। और जैसा कि मैंने लास्ट मैप में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था, बट वो इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है जैसे इस मैप में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो वो है बारदोली। बट ये एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बारदोली भी गुजरात में, खेड़ा और डांडी के बीच में। और बारदोली में भी बहुत सारे नेशनल मूवमेंट के छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स थे वो हुए हैं, स्टार्ट हुए थे। और बारदोली इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नेशनल स्ट्रगल का मूवमेंट स्टार्ट किया था। मतलब गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ ही उन्होंने अपने लीडरशिप के अंडर लोगों को प्रमोट किया था, वुमेंस को प्रमोट किया था कि वो इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लें। यही इंपॉर्टेंस है हमारा बारदोली का। सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस बारदोली इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स। So be clear with your points. With this only, I hope that you are clear. You have marked in your map. Once again, you can see this map here, and if you want, I can show you the last one map also. It is here, Kolkata, Nagpur and Madras, and one extra point we discussed was about Lahore. So you have to remember this only, this 9 points. First Kolkata, Nagpur and Madras, and after that you will be discussing about Champaran, Chauri Chaura, Ahmedabad, Amritsar, Kheda and Dandi. So total number of 9 points you will be remembering for your board examination. So this was all about your map portion for history, which will carry 2 marks in your social science paper. Do remember these points, and with this lecture only you have secured your 2 marks for your board examination. So I hope everything is clear to you all. If you like the video, don't forget to press the like button, comment for your attendance. Well, if you want me to prepare any lecture for you covering any of the extra points, surely if it is possible, I will try to bring that lecture as soon as possible for you. Keep studying, be safe, have a good day. Jai Hind.